Welcome everyone to our first episode of the ACE podcast series. I am super excited to kick this off, and today we have a really inspiring guest with us, who is Ajay Sharma. This series is all about real accounting and finance professional journeys. Either you are CPA, ACCA, or you are doing CFA, right? Or you are in UK accounting, have an interesting journey to share about. So this series is all about it. So if anyone have any interesting journey to share about their career, they could drop a comment and we could have a great podcast with them as well. So as of today, let's start with Ajay. Hello Ajay, let us know about you. Can you introduce yourself? Hello Harsh, hello everyone. Coming to my introduction, I am Ajay Sharma. If talking professionally, as the platform is regarding the ACCA, so I am pursuing ACCA. And if talking about my work experience, so I am into the audit of financial services currently. And yep, like to sum up, as per the context, this is I guess enough for it. Perfect, perfect. So the main thing that I noticed, the heart of your journey is that you started your ACCA journey right after your 10th grade. Okay. After 10th, when most of the people wonder whether to choose science, art, or commerce, you already picked up ACCA. So why ACCA and what motivated you to pursue this qualification so early on? Okay, so what happened, Harsh, is like it's generally my nature that I am pretty much attracted to things, jo are unique from others. So in my family there are CAs, and fortunately I had guidance from those. So since my childhood, I was like, there's so much of similarity and what's nothing new, because initially I wanted to go into the architects, architects, the architect and pilots, like every child has their dreams. But when I came into the 9th and 10th, and then I searched about like various courses, because I was clear about my commerce, because let's be honest, science and different things are very much as per the capability levels. I was good in science, but I was afraid for it, like I didn't wanted to give that much of time. Mm-hmm. So I searched regarding CA and CFA. But as you said, as the norms were at, at that time, 2021, 2022 around, I suppose. 2021, yeah. So during those times, there was like, ACCA, there was very much going through, and my elder sister told me about it. So I researched about it and etc. And as I said, you that it's in my nature to do things separate from others, which are, completely new and unique, and which sets me apart from everyone. So primarily, this was the, I would say, the factor I did ACCA. I wouldn't say like I wanted to go abroad, etc. That those are the secondary factors. But I wanted to be, being identified by anyone, like a separate entity. So that's the reason I did ACCA. Okay. So when we talk about the different courses that we have after 10th, we have various options like CA, which you could have also pursued. So why did you choose ACCA over CA? You could have also done CA, right? Like Yeah. what are the main things that motivated you to pursue ACCA? So most of the people say that it is the international recognition. So what about you that you chose ACCN? Okay, coming to the international recognition, but obviously it is an international recognized course, but I would say the curriculum which you are learning in ACCA, between FM, audit and all, it's throughout the same in every other course, I would say. The differences are as per, the local jurisdiction laws and etc. But you will see the same M&M theory in CA, you will see the same M&M theory in CPA, you will see the same, taxation principle, I would say, not exactly the same taxation principles across jurisdictions. Even in, you can say, for example, in UAE tax, it is like very much inspired from UK tax. So anyone who is like, it is an international course, and it would have, a very a bad impact on ourselves, ki, like, there is no scope of ACC. It's very wrong to say, I would say. That is something which people shouldn't much think, I would say, because there are various ACCs in the market, my peers and my connection.
those are working very happily. Second thing, coming to what motivated me, for example, I am a very person who does a cost benefit analysis. So I see in like if I'm putting a CA, I'm going into a CA, there is no guarantee of me, passing in the first round. I was confident regarding myself, but there is luck and destiny and all thing. And I seen my elder sister how she struggled into her CA exams. So for that, I was pretty much scared. And seeing, those huge books into age of 16 and 17 is itself a big thing for you. Someone who is Mhm. just studying geography, civics and all. So entering directly into the CA was a very, a bold decision if like that. And then I seen how fast I can get financially independent, because at the end of the day, whatever we are pursuing in our life, we are having a goal, one of the goals to be financially independent. So I seen like if I'm clearing the CA in first attempt, I can be at this stage financially independent. But if I'm starting ACCA, I can be financially independent comparatively earlier. For example, if I'm clearing my 5 to 6 papers or four papers in that, in fact, you can start Mhm. earning, minimal cost of living for yourself. Like you can manage your own expenses, etc. Okay, so for me, it was like I wanted to be financially independent and etc. So I seen, ACCA offered that pretty early, like, no restrictions on PER and no restrictions on, you have to do your PR after so and so exams. Because if there is a restriction, then you are trapped in a cycle. You cannot do your, let's say, in an imaginary world, if there is a restriction, there is a that you have to do your PR after 9 papers. So someone who has not cleared his 9 papers, he's in a loop, Good clearing the one. papers, clearing the papers, clearing the papers. So until Yes, he's reaching the age of 25, 26, or 20, 23, he would be stuck in 9 papers clearing and clearing. But in reality there is no such restriction in ACC. That really motivated me. Like, it's not that it's a financial problems or something else, but it was just like, I wanted to be financially independent, and other factors as well. So it was one of the reasons that motivated me. Third I would say is the flexibility. I would say flexibility is a great power of ACC. Like, so people saying remove exemptions, the ACC would never remove all the exemptions. They might remove it from BCom, but they will not remove, for qualified professionals, because it is the thing which sets apart the ACC. ACCA is rigid. ACCA is, very rigid about the curriculum. And you must see people are failing at 49, 48, 47. That yes, makes us understand ki, like, it is a no joke. And our organization having a charter designation. So it is not about, how easy it is or how relevant it is in the market. If an organization is having a charter designation, they are relevant. It's just that you have to be at the right place with the right skill and with the right CV resume, I would say. There are plenty of opportunities in the market. So flexibility was one of the factors, I would say, because you can give one exam at a time. And actually, what happens is whenever you give one exam at a time, you have given a proper time for understanding each and every concept. So you are mastered that particular concept. So particular even subject, when right? particular subject, and when you're studying that particular subject, let's say you're studying FM, you can explore your interest, like, okay, I am doing good in FM, I am understanding risk management. What you can do, you can do continuous development. CPD, you might have heard, many would have heard. So CPD is mainly after while we qualify affiliate or members, but you can do continuous learning by doing pursuing things related to it. For example, if you cleared your FM, you can go for NISM, so things as before the podcast we were talking about the merchant banking and the investment advisory thing. So likewise, whenever you are giving a each paper, you are having an ample amount of time to understand about your interest. You can research about, after doing that particular paper, how you can grow yourself in that field, like that. Like, for example, when in taxation as a Harsh, you must be aware of ADIT, Advanced Diploma in International Taxation. So basically, someone who is working into taxation, it is a golden standard for them. Like if they have an ADIT, etc. Transfer pricing and taxation are very best domains, I would say, for someone who is not into audit, I would say. So yeah, to sum up, these were the primary factors, I would say. Okay. Yeah, so specialization is one of the major parts. So, like, as you can see, in professional level, you get options, right? You can either choose AFM, you have ATX, APM. So, based on your interest, as you said, if you are someone interested in finance, you can pick up AFM. And if you love taxation, you can pick up ATX, right? So, this Correct. is what the option ACCA provides to you. So, you can specialize in any particular subject, right? But yeah, I would say that's you're right about. But I would say
if that will only help if you're an active learner. If you're having a mindset of just passing the exam, then it is a lackluster mindset. If you're understanding the concept, I would give an advice: understand the subject as it would be paying you off your expenses in the future. I studied my audit like that. Only I That's studied great my way to FR it. like that. Mm-hmm. Because whatever you are studying in your course is used in practical world. The auditing standards, go read any audit report of anyone in Europe and etc. You will see IFRS 9 being implemented there for financial services company. Okay, you will see auditing standards being implemented. See any audit engagement letter, you will understand that okay, वो जो contents of engagement letter वाला answer आता है, what are the contents of engagement letter in an audit, that is necessary so that when you are as a trainee working somewhere, or when you are as a auditor signing the reports or taking an engagement, you are aware of it. That's why you are called a professional. Yep. So you a person, whenever they are studying any paper, first I would say please do not have a mindset just passing the exam. No road learning like as we do in our traditional studies, right? वो बीकॉम एंड फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में वही तो डिफरेंस है. नॉट डिसरिस्पेक्टिंग बीकॉम, बिकॉज आई हैव सीन बीकॉम पीपल really doing well, but they are giving appropriate time. They are totally devoted into BCom. Hmm. So likewise in ACCA, I have seen people that दे अरे अरे यार ये तो टैक्सेशन का एग्जाम है, फटाफट पढ़ लेता हूँ, 15-20 दिन में पास हो जाऊंगा. बट दे डू नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल implication for that, I would say. There is no understanding of concepts. It can be like they might remember it for some period of time, 3, 4 months. But when you are asking them as compared to person who has really understood the subject after n number of attempts, you will see the lack of quality. And मैं बिलीव करता हूँ यार, when you are holding a chartered designation, तो आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए. Right. इसीलिए आई डोंट सपोर्ट exemption फॉर लॉ एंड what do we say, taxation. I have never seen any CA not being aware of law and taxation. So like I would So say this nowadays college provide 9 exemption as well. I have seen, right? So I think if you directly jump into professional level exam, not even knowing the basics, that make no sense to very me, difficult. right? Very difficult, very difficult. Harsh, I have very good number of 10-20 people who came directly into the professional level, and they are struggling with subjects like SBR because in their life they have never studied a thing called accounting standard. They have studied in the BCom that depreciation होता है, amortization होता है, tangible assets means इसको touch कर सकते हो, intangibles इसको नहीं कर सकते हो. सम्मन तुम उसको IFRS 16.35 एरा का डेफिनेशन बताओगे, मौत आ उसके लिए तो वो बाउंस जाएगी. वो तो वो तो बाउंस जाएगा. अब अगर आप ECL फ्रेमवर्क बताओगे IFRS 9 का, वो तो मतलब ही वुड बी लाइक वेरी मच लाइक व्हाट आई एम स्टडिंग हियर, दिस थिंग इज नॉट फॉर मी. फिर वो एडवर्स की इसका कोई स्कोप नहीं है या मैं पास नहीं हो रहा हूँ. सो इट ब्रेक्स अप लाइक दैट डाटा. अभी जो बंदा जिसने 4 पेपर एग्जाम लिया हुआ है, लेकिन उसको FR का पता है. व्हाट इज IFRS 9, व्हाट इज कंसोलिडेशन, ठीक है, व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन. अभी जो बंदा सीधा SBR, आई हैव सीन पीपल गिविंग ट्रिपल ए. ट्रिपल ए भाई मतलब ट्रिपल ए इज नॉट अ सब्जेक्ट दैट यू विल पास इजीली विदाउट बीइंग अंडरस्टैंडिंग ए डबल ए. क्योंकि लोगों की Right. डबल ए पे बात लग जाती है कि वो रिस्क को एक्सप्लेन करो. पीपल आर पेइंग thousands and thousands for clearing their audit paper in just skill level. So I'm really not a sportive person for exemptions. If you are qualified, I would say, अगर आपके पास अच्छा बैकग्राउंड, सीए इंटर हो आप, सीए इंटर हो या आपने फॉर एग्जाम्पल अदर कोई कोर्स किया हुआ है, या आपने आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है. Work experience also plays a good role. When you Right. have the experience, then you have to just study the things. It is quite easier. But someone who is with the MCom or a MBA, and आपको भी पता है कॉलेज में कैसे सेमेस्टर्स जाते हैं, like that's a reality. People rarely attend and all. Like it's Hmm. not very uncommon, I would say. Audience would agree. BCom, mainly BCom वाले तो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, तो उनको तो ज्यादा रिलेट होगा उनके साथ. तो Right. एग्जाम्पशंस के लिए मैं बोलूंगा नहीं जाओ, और तुमको स्पेशलाइजेशन भी उसके ऊपर करने का है. सो मेक श्योर कि आप उस सेटबैक्स के लिए प्रिपेयर्ड हो. इंटरव्यू में नहीं मैटर करता है कि भाई एग्जाम्प्ट हो कि नहीं, बट हाँ, जिस दिन इंटरव्यू ने आपको पूछ लिया व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ IFRS 9, देन वो आना चाहिए, यू right? तो फिर डिग्निटी पे क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूट की, लाइक व्हाट यू हैव स्टडीड. ऐसा होता Hmm. है. सो आई वुड से Okay. कि आप you must hold best standards of your
institution. I know it is like sounding bit, कि मैं ACC का advocacy कर रहा हूँ, but like come on, Harsh, we are ourselves from that own community, right? We cannot see, our institute being demeaned or being Degraded, right? compared, right? So there is only, I cannot say, 100 would be perfect about their work. गलतियां होती हैं सबसे, किसी को रेक्टिफाई नहीं होता कि भाई IFRS 9 का ECL फ्रेमवर्क क्या बोलता है, क्यों? Hmm. बिकॉज नॉट एवरीवन हैज देयर इंटरेस्ट, ठीक है? बट उनको आइडिया रहता है एज कम्पेयर टू एग्जाम स्टूडेंट, समझे? Okay. सो या ऐसा है। Yeah, so I have also a point of view regarding exemption. So I personally had an exemptions for first six papers. So what I would suggest is that what I did is while doing FR, before picking up things from FR, I started with FA so that I could understand the basics. I personally did FA for 3 months before even appearing for FR. So yes, college gave राइट। me exemption, but it is essential that you need to know the basics before even jumping to skill level and professional level. Harsh, that is the part. Na, you had taken six exemptions. That is understandable. You are, you put in that effort. But the question is not all people put in that effort, right? Abhi, someone who has taken 9 paper exemption, you can understand how much into hurry they are to get a professional degree. Yes. Like, I'm your way of getting, tackling the exemption point of view was very good, I would say. मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा। इसलिए मैंने बोला ना कि लाइक 4 पेपर एग्जामेशन इफ यू आर टेकिंग, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो आप बीकॉम में आप, चलो कॉस्टिंग में ये नहीं बोलूंगा कॉस्टिंग कितनी डेप्थ में है बीकॉम के इयर्स में, लेकिन आप पीएम में उसको कवर अप कर लोगे, अच्छे से समझ जाओगे पीएम वगैरह। बिजनेस टेक्नोलॉजी चलो, इको, एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो सब है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप ग्रेजुएशन इयर्स में कर लेते हो, आई वुड से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन वो प्रोफेशनल टाइप वाला नहीं होता ना। उसमें इट्स लाइक वेरी मच Mr. A B हरीलाल इन द बुक्स वैसा होता है। सो या दैट लाइक एग्जाम्पशंस के लिए तो आपको पता ही है पॉइंट ऑफ व्यू मेरा क्या है इसमें। So think before you choose ACCA because कॉलेज तो यहाँ पे पैसा कमाने ही बैठी है एट द एंड। वो तो नव एग्जामिशंस देके आपको आगे बढ़ने को बोलेगी, लेकिन एट द एंड आपको जो करना है आपको ही सारी मेहनत करनी है। सो थिंक बिफोर यू चूज ACCA, देयर शुड बी अ रीजन व्हाई यू आर चूजिंग इट, लाइक Ajay had. So yeah, that is the main point here. करेक्ट, करेक्ट, टोटली एग्री। Okay. And Ajay, since exams are approaching next month, are you going to appear in next month's attempt? Yeah, certainly, yes, I have booked my exam. I did booked हाँ, my एक बार exam. बुक हो जाता है तो फिर कमिटमेंट आता है। मेरे मेरे ऐसे दोस्त मैंने काफी सारे देखे हैं जो लाइक बोलते हैं तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है, बट एट द एंड बोले बुक तो करा देते हैं एटलीस्ट। उस बर्डन के, ये जो साइकोलॉजिकली वो पैसे का रहेगा। बर्डन आ रहा है उसकी वजह से एटलीस्ट पढ़ूंगा तो सही। साइकोलॉजिकली रहेगा कि दिमाग में, ओके चलो एग्जाम है, पढ़ाई करनी है। PR, like something I have seen even in PR topics, like coming to exemptions and those stuff. Practical experience is something which you have to do, okay? एंड उसको अगर स्मूथली आपको निकालना है, अगर आपको रियली समझना है कि जो आप काम कर रहे हो वो कैसे रिलेट होता है पढ़ाई के साथ, तो बस आपका पढ़ाई में स्ट्रांग होना चाहिए। आपका पढ़ाई में वो एक ग्रिप होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यू हैव टू नो थिंग्स एग्जैक्टली एज दे आर, लेकिन आपको अगर कोई पूछे कि गोइंग कंसर्न के केस में, बीट एनी सिनेरियो, ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एडवर्स देगा, है ना? मैडम मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर किया है नहीं, दीज आर द माइन्यूट थिंग्स विच मेक्स यू एन इम्पैक्ट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। क्योंकि when we sit for the partner discussions for an audit, or when we interact with a client, okay, their stakeholders literally ask us direct, because they are not aware now. Obviously they have their finance team and CA team, even the finance team asks us, they know, but they are also testing how brilliant the auditor is. Like sometimes it does happen, this is a harsh reality, but sometimes it does happen in the corporate as well. So those are minute things which sets you apart. Like during the partner discussion for an bank audit, so we were finalizing the audit, and he asked me directly, like, Ajay, what would be the standard applied here? So if you are really studied the subject well, you will make a difference very good with it. Yeah, just one thing I want to remind that
we have got just 10 minutes for this meeting. So if this ends up, we can join in another session because I think we have lots of things to discuss here. Yeah. So any strategy that you used that helped you pass your exams till now? Okay, so see, I'm a person who always gave exam single exam at a time. Like मैंने वो कभी gamble नहीं लिया, दो एग्जाम एक साथ देने का. I never took that मैंने gamble. रिसेंटली एक पोस्ट देखा, वन पर्सन डिड 4 पेपर्स इन वन अटेम्प्ट। आई थिंक 4 पेपर दिए थे एक अटेम्प्ट में, लाइक 9 महीने में शायद उसने पूरा एसीसीए क्लियर कर दिया। दैट इज आई थिंक भाई, हम तो एक एक करके आए तो भी इतना मुश्किल से हो रहा है। लाइक आजकल तो भाई एसीसीए जिस तरह से यहाँ पे लोग क्लियर कर रहे हैं, दैट अरे, इज वंडरिंग। see, it's pretty brilliant to have such people in our fraternity, in our professional world. कि भाई चार एग्जाम्स एक साथ दे रहे हैं. Pretty much, congratulations to him or her for clearing that. But लाइक इवन आपको अगर मैं बहुत ही बेसिक चीज़ पे जाऊँ, आपको पता है हम 10th एंड 12th के एग्जाम्स एक साथ ही देते हैं. सो उसमें तो हम सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते हैं, दे के आते हैं 10 सब्जेक्ट्स. सो मेरा मानना है, लाइक दिस इज माई ऑब्जर्वेशन पर्सनली, हमारे पास वो पढ़ने की आदत पहले से होती है कि 10 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ो. एंड पर्सन। हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड. और क्वालिटी इज डिफरेंट, लेकिन यू हैव दैट इनहेरेंट क्वालिटी कि लाइक यू कैन स्टडी दोस 4 सब्जेक्ट्स. लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है इसी में, तो वो धीरे 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 निकलता जाता है. And someone who has cleared 4 papers in first attempt with together 4 papers, they have that quality. You can ask them anytime, they will agree with this point. True, You that's like true. obviously you should try out things, I would say, but at your own risk. At your own risk, because uh, at your own पैसा, risk you should इन्वेस्टमेंट start बहुत है। and take risk about it. ओके। Investment बहुत है. It's like it depends on the financial conditions of person to person. Someone who is earning, for them it would be like वो 4 पेपर और बार दे देंगे दूसरे time में. But वही। someone who is just a student, so they have to take calculated risk, I would say. Money is the main factor. For foreign, I would say, in terms of global courses, ACC is something which you can do doable. But CFA and etc. are the things, if you get a scholarship, well and good. And if you don't get a scholarship, then either you have to bear the whole cost, or second, you do the post qualification. Because post qualification easy हो जाता है जब up to 2 3 years down the line you are in the work and etc. Some organization fund your education. कोई कोई कर देती हैं, बट डिपेंड, उनको वो वैल्यू मिलना चाहिए. मतलब ऐसा होता है कि उनको अगर वीपी वाइस प्रेसिडेंट उनको इनहेरेंट ही बनाना है 10 साल बाद फंड कंपनी के अंदर से, तो वो कर देती हैं फंड अपनी एम्प्लॉयज़ का. सीएफए सीपीए भी करती हैं, क्योंकि सीपीए इंडिया में कंसिडरेबली कम है. एंड इंडिया में आउटसोर्सिंग एंड यूएस का काम बहुत आ रहा है लेटली. सो राइट। सीपीएस भी करती हैं. एसीसीएस आई डोंट नो, लाइक करती होंगी. आई डेंट गेट एनी सच इंस्टेंस. इनफैक्ट स्कॉलरशिप तो देता है एसीसीए, मेरे को नाम नहीं याद है. एंडिंग में एक सन है, आता बट है बहुत स्कॉलरशिप का कम नाम. कम लोगों को बट मिलता है। हाँ, कम लोगों को मिलता है. सीएफए का स्कॉलरशिप का तो आई डोंट नो हाउ इट वर्क, सो आई कैन नॉट कमेंट मच ऑन दैट. बट या, अगर ग्लोबली बोलूँ, एसी से एक ऐसा कोर्स है जिसमें आई वुड से मॉनेटरी वाइज चीपर है. क्योंकि सीएमए की ले लो, उसकी फीस 28 to 29 30,000 है. अब सीएफए की ले लो, 1 लाख तक चली जाती है. सीपीए की भी लाइक वाइज वैसे चली जाती है. राइट. एंड एसी से क्या आप आप पार्ट क्वालिफाइड बन जाते हो लिटरली 20,000 के नीचे की फीस में. आई नो इट इज अ ह्यूज अमाउंट टू पे फॉर अ फीस, बट मैं प्रैक्टिकली नंबर्स पुट डाउन कर रहा हूँ कंपेयरिंग विद अदर अदर कोर्सेज. हम्म। क्वालिटी सब में सेम आएगी या किसी में डिफर करेगी एज पर दैट डोमेन. लेकिन मॉनिटरी वाइज आई वुड से, जिसको ऐसा है कि उसको बाहर ट्राई आउट करना है और दे हैव टू वर्क आउटसाइड डाउन द लाइन इन द फ्यूचर, सो आई वुड से एसीसी इज अ वेरी गुड स्टेप. क्योंकि जैसे इंडिया में सीए है ना, सीए करने के बाद पीपल यूजुअली वर्क एंड दे फाइंड आउट दैट डोमेन एंड दे टेक द पोस्ट क्वालिफिकेशन थिंग लाइक सीएफए सीआईए. सो समवन who wants to work in Europe or something, and they are not yet sure whether they want to do CFA or CMA or CMA या जो actuarial science etc. They can do ACCA. They can understand each and every subject, work 2 3 years, and post qualification you can pursue other courses, because this is the most economical and sane thing someone can do. ऐसा I हम्म। would say. परफेक्ट। ओके। ऐसा ऐसा I would say. करेक्ट। Hmm. uh That's you right. did
take the FIA route. So can you tell me about FIA route? What is it? I didn't even know about it. So see, FIA route is like basically foundation in accountancy route. उसमें basically क्या होता है कि if you are starting your ACC after 10th, okay, the first thing, and second thing is you're not matching the criteria, that is 75 or 65% in some subjects. मेरे को इतना exactly याद नहीं है, लेकिन ACC का criteria है, सॉरी, कि आपको मैथ्स में इतना होना चाहिए 65%, 70%. सो अगर आप वो नहीं मैच कर रहे हो, और या अगर आप 10th के बाद स्टार्ट कर रहे हो, तो आप FIA रूट में आते हो. डिफरेंस कुछ नहीं है, सिलेबस सेम होता है, बस वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लिख देते हैं फाउंडेशन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, FFA, FPT, FMA. सो सिलेबस इज द सेम, दस दैट दैट एब्रीविएशन वो अलग हो जाता है. एंड जब आप तीनों एग्जाम्स पास कर लेते हो, तो आप सीधा स्किल लेवल में आते हो. एंड आपकी मार्कशीट में वो एग्जाम एग्जाम लिख के आता है, प्लस उनके मार्क्स जो आपने पेयर किया वो भी लिख के आते हैं, क्योंकि आप AC से क्वालिफिकेशन रूट में नहीं थे ना पहले, इसीलिए. ओके। एंड इंडिया में यू आर लकी कि भाई आपको तीन एग्जाम्स देनी है FIA रूट में. FIA रूट में 7 एग्जाम्स है टोटल. समवन हु इज साथ है। इनटू फ्रॉम, या FA1, FA2 which is like the breakup of financial accounting, then MA1, MA2 which is the breakup of management accounting, like that. So something, so it's like that only. But we are lucky that we have to give only 3 exams in FIA route. But Mhm. in countries like Pakistan and etc., they have to give, I guess, all the FIA exams, MA1, MA2, FA, and I guess this they give all the exams. Itna I know. Taki exactly, though I don't remember the criteria, but they have more exams to appear than us, I would say. Okay. It's very much similar to the knowledge level only. When you book the exam, it's like financial accounting on a screen. The syllabus is same. You can watch the videos for same. So not any difference. It's just that the tag, which is very different, like that. Okay. Before we proceed with our next question, can we rejoin again? Sachin? Sure, Sure. sure, Harsh. Okay, fine. Next thing I wanted to ask from you, like you started working in audit field, right? So Hmm. how did your ACCA studies help you in this audit work and the current job that you are performing? Okay, so basically, as I said, I'm into financial services audit. So mainly two things are very much used. Three things, in fact. IFRS 9, that is India's 109, and revenue recognition norms, okay, other standards, auditing throughout, and financial management concepts. How? Because, for example, I was doing a bank audit, I remember, for one of the branches of a public sector bank. So therein, we got a sanction letter. Okay, so whenever you read any sanction letter, there is a thing called rate of interest. And that rate of interest for us, it is like bas 9%. But that rate of interest has various factors like security premium, risk premium, etc. So that when I took that sanction letter into my hand, I realized that, oh my God, like things which we have studied in CAPM model in this. I am not saying कि that is calculated by the bank etc. उनके financial models होते हैं, but I got an idea. Okay, what I'm doing is making sense now. What I've studied. Okay. Another thing was when I was doing an audit for a bank only. So that basically I was doing branch audit for that. So I was seeing the internal control because it was my first assignment for that particular bank. So I was understanding the internal controls of the branch. So when they were explaining the branch stuff, we do this, we do that, we do that, particular things. Mm-hmm. So मेरे को क्लिक इन होना स्टार्ट हुआ. ओके, अप्रूवल, ऑथराइजेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. ओके, Uh, मेरे पास अभी एग्जाम्पल नहीं है, दैट इज ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल डेटा. आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट फॉर दैट. यू कैन अटैच इट with blurring that. But I have sent into one particular group, I remember, of an ACCA. Like this is internal control questionnaire, आपने पढ़ा होगा. ICQ and ICQ वगैरह, अगर ऑडिट दिया है तो someone who has given audit, they know ICQ, what is this internet controller question. So it was exactly the same way which was taught us. Like ICQ contains this is that. One questions the control and one checks the existence of the control. Okay, so I related that pretty well, being very honest. And when जब हम ऑडिट रिपोर्ट्स बनाते हैं, जब हम ऑडिट फाइनल करते हैं, तो ऑडिट ओपिनियन वगैरह जो होता है, उसमें भी hmm. बहुत काफ़ी हेल्प आ जाती है, क्योंकि कभी कभी ऑडिट के ओपिनियन के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट में पैराज आते हैं. ओके,
सो अगर आपको उसका नॉलेज है, आपने अच्छे से पढ़ा है रिपोर्टिंग एंड रिव्यू वाला चैप्टर नंबर 11 ऑफ ऑडिट, तो आपको स्मूथली अच्छा लगेगा आपको ऑडिट डोमेन। ऑडिट इज अ डोमेन जहाँ पर आप इंजीनियर डॉक्टर सब बन जाते हो। अगर आप अगर आप यू आर ऑडिटिंग अ मैनी क्लाइंट, समवन हु इज इनटू बाइटुमिन प्लांट एंड आयरन और वो क्या बोलते हैं उसको, आयरन रोज सरिया वुड बी से इन व्हाट टू वी से इन नॉर्मल लैंग्वेज सरिया, शायद से। तो आप अगर उसका ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको केमिस्ट्री समझ आएगी भाई, वो रॉड कैसी बनती है, आयरन और तो बनता पूरा है, मैग्नीशियम, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मैग्नीज यू नो द होल प्रोसेस ऑफ एवरी सेक्टर, राइट? होल प्रोसेस। हाँ, एंड आप उस पर्टिकुलर सेक्टर को मास्टर कर लेते हो अगर अगर आपने ऑडिट करने की जगह आपको आपने अच्छे से जिया है। अभी मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑडिट किया हुआ, बैंक्स, इंश्योरेंस एंड एनबीएफसीज का। सो इन दैट आई मेड श्योर दैट वॉट एवर असाइनमेंट इज देयर इन माई हैंड, आई एम एबल टू रिलेट विद वॉट आई हैव स्टडीड। अभी आप कभी भी एनबीएफसी का ऑडिट करोगे, बीट एनी टाइप ऑफ ऑडिट, उसमें ना बहुत सारे रेशियोज होते हैं। एनपीए, नेट एनपीए रेशियो, प्रोविजनिंग हम्म। रेशियोज। अभी जो हमारे लिए बैड डेब्ट्स होता है कंपनीज के लिए, वो तो कस्टमर पैसा नहीं दे रहा। जो एनबीएफसी और बैंक्स होते हैं ना, उनके लिए बैड डेब्ट्स उनके एडवांसेस होती हैं, जो उन्होंने पैसे दिए उनको जो वापस आते नहीं है। सो फॉर दैट परफॉर्मिंग इन एसेट फाइनेंशियल, इज इट? नॉन परफॉर्मिंग एसेट वी से फॉर देम। कंपनीज में तो हम बैड डेब्ट्स को बस बैड डेब्ट्स करके क्लासिफाई कर देते हैं, बट इन एनपीए में बहुत सारी कैटेगराइजेशन होता है, सब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एक्सेट्रा लाइक दैट। ओके, सो इट्स अ वेरी वास्ट डोमेन। अगर आप अच्छे से किसी भी इंडस्ट्री का ऑडिट करोगे, यू कैन बिकम मास्टर ऑफ दैट। एंड आपको ऑडिट में ना एक बात है, आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है। ओके। I have seen people going into FP&A from audit. I have seen people going into FDD into by audit. Okay, अगर आपने ड्यू डिलिजेंस असाइनमेंट्स की हैं ड्यूरिंग योर पीईआर, ओके, फॉर को लेंडिंग और कंसोर्शियम लेंडिंग, तो आपको एफडीडी में अच्छा एग्जिट मिल जाएगा उसके अंदर। एंड पर्टिकुलरली व्हेन आई एम डूइंग फाइनेंशियल सर्विसेज ऑडिट, तो ना मुझे देयर इज अ थिंग कॉल्ड एएसएम ऑडिट, एजेंसी फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग ऑडिट। सो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि बैंक, इफ अ बैंक हैज लेंट मोर देन 250 सीआर फैसिलिटी टू एनी ऑफ द कॉर्पोरेट, the particular corporate has to go ASM audit. The banks appoint the auditor, and he has to verify the cash flows, financial health of the borrower on quarterly basis, reporting होता है, उसका ऑडिट होता है। सो उसमें ना क्या होता है बेसिकली, अभी इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्री अगर आप एनबीएफसी का कर रहे हो, अगर आप किसी और इंडस्ट्री का कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ऑडिट समझ लो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का जब ऑडिट करते हैं ना, तो उसमें ना बैंक डिस्बर्समेंट करता है। डिस्बर्समेंट का कंसेप्ट सबको पता होगा। डिस्बर्स लाइक रिलीजिंग द लोन इन सेगमेंट्स। बेसिकली जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन होते हैं, बैंक एक साथ नहीं देता है, वो फेजेस में देता है। तो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बैंक लोन रिलीज करता है एज पर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड वो प्रोग्रेस डिटरमाइन करनी होती है, विच इज वो बहुत ही एक डीप कंसेप्ट, कभी मैं आपको समझाऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट के बारे में। लेकिन एक मेन मेन थिंग बता रहा था, आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस के बारे में पता लगेगा। प्रोजेक्ट फाइनेंस में यू यूज कंसेप्ट लाइक एनपीवी, आईआरआर, जो हम एफएन में सेंसिटिविटी पढ़ते हैं। एनालिसिस। हाँ, सेंसिटिविटी एनालिसिस, यू यूज दैट एज इट इज। क्योंकि प्रोजेक्ट वायबिलिटी रिपोर्ट होती है कोई भी एक सैंक्शन करने से पहले। इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट, टेक्निकल वायबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। उसके अंदर प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज होते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होती हैं, ऑल द वर्किंग कैपिटल जो इंक्रीमेंटल होगा, सब कुछ इंक्लूडेड होता है उसके अंदर। ओके। एंड जब आप उसका एएसएम ऑडिट करते हो, तो आपको ना प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखनी पड़ती है कि जितना फाइनेंस किया है उस प्रोजेक्ट को, इज दैट फाइनेंस केपेबल टू कवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और अगर कॉस्ट हम्म। ओवररन हो गई, कॉस्ट ओवररन मतलब इट कॉस्ट क्रॉस हो गई जितनी प्रिडिक्टेड थी, जितना, तो उसको राइट। आप कैसे टैकल, तो आप उसको आप कैसे टैकल करोगे, हाउ हाउ द प्रमोटर्स एंड द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द प्रोजेक्ट विल टैकल दैट कॉस्ट ओवररन। तो इससे आपको अपनी कॉस्टिंग टेक्निक्स भी पता लगती हैं। एफएम तो मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया कि कैसे यूज होता है ऑडिट के अंदर। ये मैंने आपको हम्म। बस एक एक पर्टिकुलर ग्लिम्स दे दिया एक सेक्टर का, कि हाउ इन इंफ्रा सेक्टर यू यूज। ठीक है। सेंसिटिविटी, कभी भी आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइंट की टीवीआर पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर आपको लिखेगा सेंसिटिविटी एनालिसिस, एंड माइंड इट, आई एम कोटिंग दैट, लिखा होता है जैसे बुक्स पे लिखा होता है, व्हाट हम्म। इज डिस्काउंट रेट इज 2%, सेल्स एट 0। जैसा हम सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करते थे इसके अंदर, एसीसीए के हम्म। अंदर।
फर्क ये है, हम बुक्स में करते हैं, वो मॉडल्स उनके पास पहले से होते हैं, दे जस्ट नीड टू पुट नंबर्स ऑन द एक्सेल, लेकिन उसके बाद आपके पास डेटा अच्छा होना चाहिए जिसका आप टीवीआर करने बैठे हुए हैं। ठीक है। फिर वो जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होती है, आपको प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के हिसाब से बैंक आपको डिस्बर्समेंट करेगा, आपकी जो फैसिलिटीज है सैंक्शन। ओके, एंड देन यू हैव टू मैच इट विथ योर वर्क जो आपने कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड किया है। सो इट इज लाइक बहुत ही फैला हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देयर इज। अभी किसी को पता नहीं होगा, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट एंड एचए मॉडल्स होते हैं व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग एनी इंफ्रा प्रोजेक्ट। सो इट्स प्रीटी मच डाइवर्स। एनबीएफसी में हो तो एनबीएफसी में एएलएम स्टेटमेंट होते हैं, वो जो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो सब तब उसका यूज बहुत अच्छे से समझ पाओगे इन एएलएम। क्योंकि when there was a NBFC for which an ALM review was done. In NBFC, non-banking financial company, if you are lending, so it is compulsory to have a ALM committee, Asset Liability Management Committee, जो हम पढ़ते हैं, ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी एक्सेट्रा। वो एक आरबीआई की तरफ से नॉर्म है कि एएलएम आपके पास होना ही चाहिए। तो एएलएम कमेटी आपने इंटरेस्ट सेंसिटिव लाइबिलिटीज तो सुना होगा, एसेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज एंड इंटरेस्ट सेंसिटिव लाइबिलिटीज, गैप एनालिसिस इन एफएम। और जिसने भी एफएम दिया एफएम दिया, दे वुड रिलेट विद इट। सो मैं आपको, अभी टाइम कम है हमारे पास, अभी दिस नॉट द राइट में कि मैं ऑडिट के बारे में कभी डिस्कस करूंगा और इसके बारे में, लेकिन मैं आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ कि हाउ वॉट एवर यू स्टडी इज बीइंग यूज्ड प्रैक्टिकली। आप अगर एनबीएफसी में काम करोगे, आप एएलएम स्टेटमेंट्स बनाओगे, और एएलएम स्टेटमेंट्स में नेट आउटफ्लो, नेट इनफ्लो, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, गैप एनालिसिस। सो इफ समवन वांट्स टू रियली ग्रो इन एसीसी या एसीसी के बाहर भी आपको किधर ग्रो करना है डोमेन में, डू द कंटिन्यूस डेवलपमेंट। आपने एफएम पढ़ा तो एफएम में आपको समझो रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा टॉपिक लगा। ठीक है, तो आप पढ़ो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, हेजिंग्स होती हैं। हैचिंग क्या हमारे होती है? सिलेबस में बायर्स क्रेडिट नहीं है, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट नहीं है, वो भी एक बहुत सही टॉपिक है। आई विश वो हमारी इंस्टीट्यूट ऐड कर दे, बहुत सही टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट का। ओके। इंटरनेशनल यूज होता है। बैंक गारंटीज के बारे में अगर और डीप में बताया जाए, लेटर ऑफ क्रेडिट है, दैट इज गुड। लेटर ऑफ क्रेडिट है हमारे सिलेबस में। सो आप जब बैंक ऑडिट करोगे या कोई भी फाइनेंशियल कंपनी का ऑडिट करोगे जो एनबीएफसी या बीएफएसआई सेक्टर के अंदर है, आप एफएम का तो एन ऑडिट का कॉम्बिनेशन बैठ समझ लोगे कि कैसे वो हैंड इन हैंड चलते हैं। ओके। सारे ही सब्जेक्ट मैंने तो देखा है एचसीसी में, एटलीस्ट हम जो पढ़ रहे हैं इट इज अप्लीकेबल इन रियल वर्ल्ड, राइट? ऐसा नहीं है कि रियल, हम पढ़ रहे हैं जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ रहे तुमको वो बस आइडेंटिफाई करने की वो कला होनी चाहिए। वो कला तो आएगी जब तुमने वो सब्जेक्ट को रियलिस्टिकली पढ़ा हुआ है। वो तो आएगी आपको, अगर आपने बस पास करने के लिए पढ़ा है तो आप ब्लैंक हो गए यार, व्हाट इज दिस रिस्क प्रीमियम इन द सैंक्शन लेटर, मैंने तो पहली बार पढ़ा हुआ है। सो इट्स ऑल इन द माइंडसेट, कैसे माइंडसेट हैं। से आप अपने एक डिग्री को अटेन कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एसीसी में ही ऐसा है, हर एक डिग्री में ऐसा होता है कि किसी किसी को होता है कि भाई मेरे को पास होना है, and वो पास हो भी जाते हैं, वेरी आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि वो ऐसे माइंडसेट से पास हो जाते हैं। बट लेकिन जब काम करने की बारी थी, दे आर लाइक दे वोंट एडमिट इट कि दे आर हैविंग डिफिकल्टी, क्योंकि वो एक प्राइड होता है कि भाई आई एम एसीसी और सी। Have that लेकिन वो qualification. कहीं ना कहीं तो वो डिफिकल्टी आती है उनको कि भाई अरे यार ये तो मेरे को बाउंस जा रहा है। किसी क्लाइंट ने आपको के आपके पार्टनर ने बोल दिया, ऑडिट पार्टनर ने कि यार हेल्प मी इन गिविंग द ड्राफ्टिंग एन ओपिनियन फॉर दिस दिस ऑडिट एट दिस दिस सिचुएशन। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एडवर्स ओपिनियन परवेसिव है कि या नॉन परवेसिव है। ठीक है। हम्म। सो ऐसा होता है काफी। सो इट्स ओके, पीपल इम्प्रूव बाय द टाइम। एंड आई विश कि लाइक हमारी फ्रेटर्निटी अभी ग्रो हो रही है इंडिया के अंदर एसीसीएस की। सो आई हैव अ ड्रीम लाइक टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी पर्टिकुलरली फॉर एसीसीएस, लाइक सो we'll see one day if that is possible, where You're also all working towards it, right? You have various groups with the name the ACCCS, right? What are yeah, you yeah, doing I'm the with it, right? What is the motto of it? see the motto is basically I'm not a person who is much more into academically, कि मैं आपको बताऊंगा कि how to pass this paper or how to do this stuff, like that is something I will say people can do sort their own if they are doing a professional course, they have that Mhm. capability कि भाई वो सॉर्ट कर ले। उनको गाइडेंस चाहिए होती, दैट आई कैन गिव। मेरा मोटिव ये होता है कि लाइक फर्स्टली वी आर एस्टैब्लिशिंग एसीसी वेर एवर वी आर गोइंग, वी आर मेकिंग श्योर दैट आर इंस्टीट्यूट एंड वी आर सेल्व्स आर नोन वेर एवर वी आर। सेकेंड थिंग इज आई एम प्रमोटिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, दैट इज माई मेन मोटो। क्योंकि स्टडीज आर ओनली गुड व्हेन यू हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस।
and that is the main thing which all people are having very unclarity. Like आज तक लोगों में अनक्लैरिटी है कि भाई क्या हमारी पीआर सीए अप्रूव कर सकता है। पीपल आर हैविंग डाउट कि आईएफएससी क्वालिफाइड क्या होता है, जबकि वो बिजनेस टेक्नोलॉजी और एफआर के अंदर पढ़ चुके हैं आईएफएससी क्या होता है, तभी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ। एग्जामेशन वाला भी याद आता है ना, कि एग्जामेशन लिया हमने तो कैसे याद आएगा फिर। वो एग्जाम्पशंस पे भी केस नहीं है हर। इट्स एग्जैक्टली कि जिन्होंने एग्जाम्पशन नहीं मिला है, उनको भी डाउट है आईएफएससी होता क्या है, जबकि वो पढ़ के आए हैं आईएफएससी बॉडी क्या है, आईएसबी हम्म। बॉडी क्या है। बेसिकली आपको अगर अपनी पीआर अप्रूव करानी है वर्क ऑब्जेक्टिव्स, तो आपका जो भी पार्टनर है वो आईएफएससी। आईएफएससी क्वालिफाइड होना चाहिए। करेक्ट। यार अभी आईसीआई सीए एसीसीए सब बाय डिफॉल्ट आईएफएससी में आते हैं, बिकॉज दे आर द पार्ट अंडर। ऑफ दैट बॉडी। यस। ठीक है। और अगर आपका मैनेजर नहीं, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है कोई भी सीए, तो आप बाहर से अप्रूव करवा लो। इट्स नो वरीज कि आप जिसका वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट है में जो काफी लोगों को नहीं पता है, कि लाइक हम बाहर से भी किसी सुपरवाइजर से अप्रूव करा सकते हैं हमारा पीआर। करवा सकते हैं। अरे आजकल मेरे को लगता है अभी तो सीओपी की वो आ गई कि सीओपी वाला होना चाहिए। पहले मेंबरशिप वाले चल जाते थे, अभी तो दे आर लाइक सीओपी नंबर भी डालना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, एंड इवन अपलोड द सीओपी का फोटो इन द पोर्टल। आई हैव अच्छा। सीन दिस। क्योंकि मैं अच्छा। एक अपने फ्रेंड को हेल्प कर रहा था, तो तभी उसको मांगा था। आई रिमेम्बर मेंबरशिप था या सीओपी था, बट इंस्टीट्यूट हैज आल्सो बिकम वेरी मच की जैसे कि रिमोट एग्जाम्स अभी खत्म कर दिए इंस्टीट्यूट ने, दे आर ये ना एंडेड द वाला है। रिमोट एग्जाम। दिस इज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड स्टेप बाय द इंस्टीट्यूट। मेरे को लाइक वो उन्होंने रीजन बराबर दिए थे, गिवन अ वेरी गुड रीजन दैट देयर वाज कोविड, अभी कोविड नहीं है तो अभी हम खत्म कर रहे हैं। अभी आ जाओ सेंटर पे। अभी सेंटर पे आ जाओ, बट उनको सेंटर्स बढ़ा देने चाहिए ना यार फिर। सेंटर्स भी तो नहीं है यहाँ पे। अब अगर अहमदाबाद की हम बात करेंगे तो एक सेंटर है। लाइक अभी एनरोलमेंट्स बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे सेंटर्स अभी भी नहीं है। और सभी यहाँ पे अगर सेंटर्स में आएंगे, जैसे कोई रिमोट एरियाज में है, तो वो क्या करेंगे? तो वो कंसर्न रहता है। इनफैक्ट जयपुर वाले भी तो अहमदाबाद में आते हैं, मैंने मोस्टली देखे जयपुर एक्सेट्रा वाले। सो माय ऑलरेडी माय कॉस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन इज हायर एंड यू ऐड दिस अप। यू कैन से कि भाई 200 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाता था मैं। Yeah, you have a own struggle story to be honest, Harsh, but ठीक है। अब I have seen CCAs की posting regarding tagging the institute for increasing the exam centers. I just have one wish that someone from India is the council member in ACCA. I never seen that, like, because it plays a huge impact. When you are a council, you have a representation like that, like into global council, like जैसे ICM होते हैं ना, central council members, CCM, etc. So I want in ECCA there is someone who is from India and they are representing the students of India. अभी तो आई डोंट थिंक सो इतना है, लोकल लेवल पे होगा, नेशनल लेवल पे काउंसिल्स में होंगे, बट ग्लोबली भी बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है। बट जो हमारे इंडियन ट्यूटर्स है वो हमेशा हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। लाइक कोई भी पॉइंट रेज करना हो, दे आर वेरी एक्टिव फॉर इट। Yeah, in ACCA there is a unity. I would say there is a lot of unity यूनिटी in है। ACCA. I cannot say about other courses because, but in here there is. I've seen a lot of unity. People have really togetherness, and they are really open and not reserved for their ideas and their thoughts. I would say in other courses I've seen people are pretty much reserved for that ideas, or you know what I'm trying to say, because अगर आप किसी चीज के लिए स्टैंड नहीं होगे फॉर योर कम्युनिटी, देन आई थिंक वो फिर क्वेश्चन करता है आपकी उस पे कि वो जो इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वो सब जो कोड ऑफ एथिक्स डाले हुए हैं एसीसीए ने। मेरी दिस इज हाउ विजन यू दैट ग्रो इज द टुगेदर, डिफरेंस। राइट? या एग्जैक्टली, लाइक आप जब एक अभी सी चार्टर्ड अकाउंटेंसी से कम्युनिटी अपनी, जहाँ पर यू कैन नॉट सिट आइडियली और रिजर्व, that is someone for astronauts, those are who are just into chemical reactions and all, they have to be very focused. अगर आप बिजनेस भी करोगे अपना, आपको क्लाइंट से बात करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बात करना ही पड़ेगा। करना आपको पड़ेगा। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके जो पीयर फर्म्स हैं या आपके जो नोन्स हैं या जिनसे आप मिले भी नहीं हो कभी, आपको उनसे भी बात करना पड़ेगा टू गेट द बिजनेस फ्रॉम देम। सो आई हैव सीन दैट इन एसीसी पीपल डोंट हैव कम्युनिकेशन इश्यूज, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्पॉट ऑन होती है। दे डोंट आई इन as per the people I have met until now, there is very unity. In fact, I remember जब मैंने एसी से स्टार्ट किया था तभी तो मतलब
इट वाज इतनी कम्युनिटीज भी नहीं थी। अंशुल सर होते थे उस टाइम पे, एंड वी के जो टीचर्स थे फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर आल्सो द वेरी टॉप नॉच टीचर्स आई वुड से। दे आर डूइंग रियली ग्रेट आई वुड से, गिविंग द फ्री रिसोर्सेज ईच एंड एवरी ट्यूटर। बुक्स का कॉस्ट तो बच ही जाता है अगर समवन हु इज गुड फॉर लर्निंग ऑनलाइन। अगर किसी को बुक की आदत है तो बुक का कॉस्ट ऐड अप हो जाता और अभी तो है बुक का वैसे। भी ACCA स्टडी अब हमारा आ चुका है, तो वो भी पॉइंट रहता नहीं है। हाँ, बट आई वुड से अगर एसीसी को लिटरली अगर इंडिया में अपनी एस्टैब्लिशमेंट करनी है तो दे शुड फर्स्ट सेट अप अ हेडक्वार्टर, एंड सेकंड दिस इज दे शुड स्टार्ट गिविंग फिजिकल मॉड्यूल्स टू द स्टूडेंट्स। दैट कैन बी डन, राइट। That is where ACC will I'll actually get the response. अभी like I don't know about other cities. I'm from Mumbai, so Mumbai में there is a very good awareness of ACC. I would say very good. मतलब इधर इधर अभी इधर अगर एसीसी नहीं भी प्रमोशन करे तो भी किसी को पता लग जाता है, इधर हो चुका है। पिछले 1-2 साल में तो काफी ज्यादा ही यहाँ पे लाइक पहले क्या था, ये ना नोन था इनटू पीपल हु आर ऑलरेडी क्वालिफाइड, जो सीए है ऑलरेडी, उनको पता तो चलो एसीसी क्या है। क्योंकि पहले भी आपको पता है ना, सीपीए जब इंडिया में आया, सीपीए वो समथिंग लाइक कि फ्रेशर्स बहुत रेयरली करते थे। दोज हु आर ऑलरेडी क्वालिफाइड उनको अवेयरनेस होता था कि सीपीए होता है, ये होता है। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी आई हैव सीन पीपल हु हैव नॉट एनीथिंग बट दे आर डूइंग सीएफए, दे आर डूइंग प्रीटी ग्रेट। 12th के बाद सीएफए लेवल 1 दे रहे हैं, सीएफए लेवल 2 दे रहे हैं। सो थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ आई वुड से प्रीटी मच। तो अभी तो एटलीस्ट देयर आर क्लास। we are not bounded by the boundaries, right? We can work internationally. A client sitting in US and UK, we can provide services to them. So this is what the magic of ACCA and qualification like this have. बेस्ट थिंग आई वुड से, लाइक लिटरली द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपने, यार आप क्रॉस बॉर्डर एडवाइजरी आपको पता है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन हैव इन एज अ स्किल इन यू। आप, आई वुड से साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि नाइजीरिया वगैरह, दोज आर नॉट Mhm. ग्लोरीफाइड टू लिव इन, बट दे डोंट हैव स्काई स्क्रैपर्स एंड ऑल। बट if you go there you will find a very good professional career for yourself इन मिडिल ईस्ट, इन साउथ एशियन कंट्रीज। मतलब मैंने बहुत रेयरली सुना कोई टचअप करता है, क्योंकि तो लैंग्वेज इश्यूज आ जाते हैं, लाइक जापानीज एंड ऑल। लेकिन अगर आप रियली मोटिवेटेड हो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एसीसीए। देर आर कितने सारे एमओयूज हैं एसीसीए के, इंडियन सीएमए के साथ भी एमओयू है उल्टा एसीसीए का, तो या मेरे को ये जहाँ तक काफी याद है। लोगों को नहीं पता रहता है। ये काफी लोगों को एग्जामिनेशन पता जिस नहीं है। एंड समवन जिसको प्रैक्टिस करना है इंडिया में इंटरनल ऑडिट में, यू दे कैन टेक अ सीएमए डिग्री। या जिसको पब्लिक सेक्टर में जाना है बेसिकली, हम्म। तो वो भी सीएमए ले सकता है। कि सीए सीएमए स्लैश एसीसीएस को ले लेते हैं, आई वुड नॉट से नहीं लेते हैं, लेकिन यू शुड हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आप क्वालिफाइड होने चाहिए हर आई वुड से। क्योंकि देर आर मेनी ओपनिंग्स फॉर बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, आप देखते हो कि बहुत आती हैं, सी ए सी हम्म। एफ लिखा होता है, या एनी अदर मास्टर्स डिग्री। वन थिंग इज क्लियर कि एसीसी इज इक्वल्स टू मास्टर्स, ओके, लाइक इट हैज अ मास्टर्स डिग्री, like just like CA is equals to MCOM in India, in UK is ACC is equals to masters. Okay, it is required level 7. So आपको वीजा इश्यूज तो नहीं आते हैं। इशू कहाँ आएगा, या तो आपको जॉब आपकी स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए, वो एक इशू आ जाता है कभी कभी, या तो हम्म। आपके पास होम कंट्री में अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। वीजा वाइज यू विल नेवर गेट एनी इश्यूज एनीवेयर इन एसीसीए। अगर आप ईयू में जा रहे हो तो ईयू में तो देर इज नॉट सच एनी इश्यूज, मतलब जहां तक, मतलब मेरे जितने कनेक्शंस हैं उन्होंने तो मेरे को नहीं बोला कि ऐसी हम्म। कुछ ट्रबल है। ओनली ट्रबल इज व्हेन यू हैव टू गेट द जॉब इन ईयू, क्योंकि गेटिंग अ employee from India or from another country, paying the cost, because nowadays companies are really very cost effective. So हम्म। so you have, like, I'm not saying you cannot go outside. You can, what you can do is you can initially work in Middle East for 2 3 years and then you go to Europe and etc thing. Like this is the very uncommon route, but it does work out, I would say. And instead of directly targeting Europe, you work in 3 4 years Gulf, you get a good immense multinational exposure as well. So then you can go to Europe, I would say. But I And would say personally, best thing is if you are practicing, that is the best thing. Practice is anytime the best thing, considering you have good experience in that domain, आपको उस चीज के बारे में पता है। yeah, Second thing no. is you are not shy enough, क्योंकि प्रैक्टिस में आप you cannot be shy, you have to talk with people, you have to make connections, you have to do networking of your firm and your business and your client, right? So
इट डिपेंड्स ऑन विच डोमेन यू आर। अभी ऑडिट में तो तुम ज्यादा नेटवर्किंग कर नहीं पाते हो, एडवर्टाइजमेंट अलाउड ही नहीं है उसमें, तो ऑडिट में हम्म। इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा। बट किसी को रियली अगर समझना है ना ACCA की वैल्यू, आस्क हर्ष एंड राहुल, बिकॉज आई हैव सीन द वर्क ऑफ Rahul. It's He's doing really very spot on. I wish I can do something for audit because I have similar knowledge for in-depth exposure of audit. But the thing is, uh, it's not about that I don't have any platform, but it's the shortage of time, I would say, for that. But Rahul is pretty much doing the best work for taxation, and even Harsh, in fact, you, because लोग पढ़ तो लेते हैं यूके टैक्स इन ACCA, बट उस वो चीज आपको तब तक How आपको that अच्छा लगेगा ना, applies? जब आप करोगे उसको, जब आपको पता लगेगा अरे यार वैट की स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज 20% होती है। जैसे इंडिया में GST रिटर्न से पैसा कमाते हैं ना बहुत लोग, वैसा वैट रिटर्न से भी कमा सकते हो, कंसिडरिंग आपके पास अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपके पास अच्छे क्लाइंट्स है, एंड यू आर नॉट एरर प्रोन। क्योंकि बाहर मैंने जहाँ तक क्लाइंट्स को देखा है, दे वांट अ पर्सन हु इज नॉट डूइंग एनी एरर्स। उनको क्वालिटी चाहिए, आप भले 3-4 दिन लेके दो, बट Because दे there are डू नॉट strict वांट। rules in UK. HMRC has strict rules so that they पढ़ रहा हूँ मैं अभी टैक्स में, वो 3,000 पेनल्टी और समथिंग, थ्री हाँ थाउजेंड पेनल्टी पाउंड जरूरी होता इंडिया में तो चलो काटते नहीं है वो फीस में से, बट बाहर इज आई, मैंने जहां तक रूल सुना, अगर क्लाइंट को कुछ लॉस हो रहा है, क्लाइंट आपको फीस में से काट के देता हूँ पेनल्टी। जहां तक मैंने सुना है। है। Yeah. ऑडिट में ऐसा नहीं होता। ऑडिट में टच वुड, व्हाट द फीस इज, यू हैव टू पे द फीस, डजंट मैटर इज एडवर्स एडवर्स ओपिनियन और नथिंग। बट आई वांट टू प्रैक्टिस इन ऑडिट डोमेन पर्टिकुलरली। There are various ways for like you can practice in internal audit. Okay, you can give consultancy services as an ACCA. You can partner with CA. जो ACCA में है उनके मोस्टली CA फ्रेंड्स तो होते ही होंगे, आई सपोज सो। या जब आप वर्क करते हो तो तब आप यू शुड हैव दैट very strong mindset interacting with people, searching your future business partner in when you're networking, like जो the ACCist है, my partner Sandharb Raj, he's working in Forvis now. So we Mm-hmm. met on a very random platform, being very honest. Very randomly we met. And now we are almost running a business. So, so, so you should, like, अगर practice के goals हैं, so it's pretty good, I would say. Okay. Okay. And one question is that people think like you did start your PR, you started your experience along with your studies, right? So most of the people are confused whether to start early on your jobs or later on after completing your qualification or during your skill level or anywhere, right? Before even starting ACCA, right? So this is one of the major concern that people think about what to do in this case. What is your take on it? So if I would have to say about this, I would say that you can start after skill level at least, so that you can build your experience along with, because what you have learned is of no work until you can use it. Okay, so till you get to the professional level, you can start your work. What's your take on it, Ajay? Yeah, like pretty good said, because see, first thing is I would not recommend someone to start their experience clearing after all 13 papers. Because when you will clear all 13 papers, you have to get experience as well. Okay, in order to yield a good ROI from ACCA. Okay, and like then you cannot complain. Like भाई ACCA का रिटर्न नहीं आ रहा है मुझे, then that is very unfair. Okay, institute has never stopped you from gaining any experience from anything. Our institute is touchwood very supportive. ऐसा है, Yes, अगर आपने ऑडिट का पेपर नहीं भी क्लियर किए हैं ना, और अगर आपने ऑडिट पे काम किया, वो एक्सपीरियंस काउंट कर लेते हैं। yes, दे डू काउंट एक्सपीरियंस। अगर रिजिड होना चाहे तो लाइक हाउ डू यू डू ऑडिट इफ यू आर नॉट क्लियर योर ऑडिट पेपर। So we are lucky that we are not that facing that much rigidity. We have no restrictions on transfers as well. Okay, coming to starting a PER, I would say practically the most used concepts of subjects are like audit, FR and FM. मतलब ये तीन आप यूज करोगे ही करोगे ड्यूरिंग अ पीआर। कमिंग टू कॉस्टिंग इज वेरी मच स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक है वो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन एज यू नो हर्ष, वो भी मतलब अगर आप उसमें काम कर रहे हो तो आप यूज करोगे टैक्सेशन। नहीं तो आपको टैक्स की उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको डेफर्ड टैक्स और वो सब पता हो, करंट लायबिलिटीज, अगर आप ऑडिट डोमेन, क्योंकि जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हो तो आपको ये सब चीजें वेरीफाई करनी चाहिए, डेफर्ड टैक्स, IS 10, टेम्परेरी डिफरेंस डिडक्टिबल, सो ऑन दैट स्टफ। सो अगर आप एक ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ पर यू कैन गेट अ जॉब फॉर योर PR,
then I would say start when you are done with your audit, FR and FM. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, इन दैट इन प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑडिट हाउ डू वी यूज दीज थ्री नॉलेज प्रैक्टिकली। ठीक है, नॉर्मल ऑडिट भी आप कर रहे हो तो भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आप यूज करोगे। अगर आप किसी रिटेल का ऑडिट करने जा रहे हो, नॉट कॉर्पोरेट बट एनी company which is applicable to India or something like that, you will use accounting standards, right? You will be calculating ratios and all. You will be doing or using audit procedures. So I would say you're good to go when you have started, when you are done with audit, FR and FM. Okay. Okay. Audit, Yeah, that like that is what I after would say. that audit, क्योंकि उससे क्या होगा, आप प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स दोगे, यू विल हैव अ गुड बेस होगा। एंड सच थिंग इज, आपने काम किया, आपको आंसर ड्राफ्ट करने में आसानी होगी, स्पेशली इन Mm-hmm. सब्जेक्ट लाइक ऑडिट। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो जो प्रोफेशनल स्किल्स वाले मार्क्स होते हैं, 20-30 मार्क्स जितने भी होते हैं, वो आप Mm. उससे वो इजीली गेन कर लोगे। वो ना, वो जो बिजनेस एक्यूमेन होता है ना हर्ष, दैट बिजनेस एक्यूमेन कम्स व्हेन यू आर वर्किंग। आपको नॉर्म्स के Working. बारे में पता लगता है, योर एबिलिटी टू ड्राफ्ट गेट्स वेरी बेटर। ठीक है, सो एक टेक्स्ट बुक पढ़ने से और नहीं होगा सिर्फ। टेक्स्ट बुक पढ़ने से आपको अवेयरनेस आती है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, टेक्स्ट बुक एक्ट्स एज अ गाइड दैट हाउ यू हैव टू डू द थिंग आइडियली इन अ राइट कंडीशंस। राइट कंडीशंस तो नहीं होती हैं ऑब्वियसली लाइक परफेक्ट मार्केट, बट वो एक गाइड है आपके लिए। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन भी आप जब भी भूल जाओगे, यू हैव ऑल द राइट टू ओपन दैट कैप्लन टेक्स्ट एंड गो थ्रू दैट, क्या रूल है उसके अंदर। क्योंकि वो लिखा हुआ है ना कि दिस इज नॉट रिजिड। टैक्स के हिसाब, टैक्स एंड ऑडिट को छोड़ के बाकी कहीं भी रिजिडिटी नहीं है, एंड एफआर को छोड़ के। बाकी पीएम में आपका जो मन करे आप करो, आपको सिर्फ टारगेट कॉस्टिंग यूज करनी है, लाइफ साइकिल यूज करनी है। ठीक है, सो आई वुड से आप ये सब एग्जाम्स क्लियर कर लो एक बार, तो स्टार्ट कर सकते हो। किसी वो स्टैंडर्ड रूट में मत जाना कि मैं 9 पेपर्स क्लियर करूंगा और मैं तब स्टार्ट करूंगा। बेस्ट थिंग क्या हो सकती है, आप ग्रेजुएट हो और आपका ऑडिट, एफआर और एफएम जैसे पेपर्स हो चुके हैं। क्योंकि केपीएमजी एंड जो भी कंपनीज होती है ना, वो मतलब हर 3-4 महीने में ना, हर दे डू गेट देयर ओपनिंग्स फॉर एंट्री लेवल रोल्स इन ऑडिट एसोसिएट 1। हम्म। सो यू कैन टारगेट दोस रोल्स। सो अगर आप गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, मुंबई में तो इतना नहीं आता केपीएमजी का, कुछ दूसरी कंपनीज का आता है, बट देर इज, आई वुड से, कमी नहीं है आपको जॉब्स की। इट्स जस्ट दैट आपने राइट पेपर्स क्लियर करे होने चाहिए, और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी आपको पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर ट्रू आप ट्रू स्टार्ट ऑडिट ट्रू। के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंटरव्यूअर वोंट एक्सपेक्ट यू टू बी मास्टर ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, लेकिन ही वुड एक्सपेक्ट यू टू बी नोन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ही वुड बी एक्सपेक्टिंग यू टू बी नोन ऑफ व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, ऐसा होता है। सो स्टार्ट आफ्टर ऑडिट, एफआर एंड एफएम। पर्सनली मैंने तो अपनी पीआर स्टार्ट करी थी जब मेरा एफएम हो गया था, और तभी मैं ऑडिट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बिकॉज आई, एज आई सेड, आई लव टू बी यूनिक फ्रॉम एवरीवन। सो मैंने एक ट्रेडिशनल रूट नहीं लिया। मैंने एफआर अपना सब्जेक्ट दिया ही नहीं था पहले एज अ स्किल लेवल का पेपर। आई गेव एफएम। पीपल यूजुअली गिव एफआर, आई गेव एफएम, देन आई गेव ऑडिट, देन आई गेव पीएम, देन आई गेव एफआर। सो This is what is beneficial for us. Like whenever we want, we can give any subject. एनी ऑर्डर यू कैन गिव। मैं तो बोलता हूँ यार, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें यू आर फाइंडिंग इट गुड, आप उस हिसाब से अपने पेपर्स दो। ऐसा कुछ फिक्स नॉर्म नहीं है कि आपको एफआर आएगा तो ही ऑडिट आएगा। ऑडिट आपको आ जाएगा अगर आपने, यू हैव डिड गुड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इफ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यू कैन गो थ्रू इन ऑडिट। ठीक है, नॉट एनी स्पेसिफिक। एंड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन ऑडिट के सिलेबस में वो ऑडिट रिस्क वाले पार्ट में ही यूज होते हैं। एंड एक तो एरियाज हैं जिधर यूज होते हैं, नहीं तो उसका क्या ही फायदा, लाइक अगर आप बोल रहे हो पूरा ऑडिटिंग ही अकाउंटिंग है, ऐसे नहीं Mm-hmm. होता है। सो True. it's just that you have to be courageous. If you are someone who doesn't follow people, then it's a very good thing. You have to be courageous for that. You can आराम से clear PM tax एक साथ, audit FR एक साथ, या FR PM. There are pretty much odd combinations which I have seen people have given and cleared on first Clear attempt. that. Yeah, I've never. People don't usually give FR and PM एक साथ, but but there are people out there who have cleared those. You never see, Exceptions. you never see people giving APM and ADX together, but there are people Mhm. who have given those and cleared those out. AFM and triple, like FM and triple are very common, AFM and etc. But AFM and SB are pretty much rare, I would say. So clear audit, FRFM, do study them well, है ना? And you will see gradually that.
okay, these papers I studied, this is how we use them practically. Okay. Okay. So that is it. We can conclude with that. Lots of insight we have got from Ajay, who is currently working and gave us lots of insight about auditing field and how we can excel in our ACCA journey. Uh, how ACCA is flexible for us. It opens international opportunities. So many things we have got to know with him. So thank you, Ajay, for joining us, and to everyone listening. Stay tuned for more episodes where we will explore real journeys and exam tips and industry experience. So, yeah, see you in next episode. Thank you, Ajay. Thank you, everyone.